everyone, welcome back to our YouTube channel AgriAddict. This is our lecture series for IPS AFO mains examination, and this will also be helpful in other agriculture related examination. I am your mentor Mohit Gupta. I have completed my undergraduate from College of Agriculture Pune, and I secured All India Rank 26 in ICRPC exam. And currently I am pursuing my masters at IRI Karnal Hub IIWBR in soil science discipline. In the last lecture, we started the topic pedology, and today we are going to continue the topic in which we will study weathering of rocks, then soil profile and soils of India. Okay, so let's start the topic. First, weathering of rocks. Weathering of rocks, it is the physical disintegration and chemical decomposition of rocks and minerals that resulting in the formation of parent material. ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है? इट इज द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब breakdown, physical breakdown and chemical decomposition of rocks and minerals that will lead to the formation of parent material. ठीक है, रॉक्स का और मिनरल्स का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा और उनमें केमिकल रिएक्शन होगी जिससे क्या बनेगा? पेरेंट मटेरियल बनेगा और पेरेंट मटेरियल से फाइनली आपका किसका फॉर्मेशन होगा? सॉइल का. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपके पास जो रॉक्स होती हैं इन पे होती है वेदरिंग. वेदरिंग मतलब वही डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन. उससे बनता है आपका रेगोलिथ. देन रेगोलिथ पर चलती हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. देन फाइनली आपका फॉर्मेशन होता है ट्रू सॉइल का. देन रेगोलिथ क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं. अभी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है वो भी हम आगे देखने वाले हैं. ठीक है, so first one is physical weathering. Physical weathering, it is a mechanical process causing disintegration of consolidated massive rocks into smaller pieces without any chemical reaction. फिजिकल वेदरिंग में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, जस्ट एक आप ऐसा समझ लीजिए एक बड़ा पार्ट है जो कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो गया है. जस्ट सिंपली विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बड़े पार्ट से छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाना. दिस इज फिजिकल वेदरिंग विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन. ओके, नाउ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल वेदरिंग आर, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. Due to the diurnal changes in temperature. Diurnal changes means, this is diurnal. What is diurnal changes means? Day and night temperature changes. Due to the day and night temperature changes, different minerals expand and contract at different rates. Okay, due to this, the rocks peel out the outer layer. रॉक्स की जो आउटर लेयर है उसकी पीलिंग स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, जैसे आलू में से छिलका निकलता है ना, सेम उसी पैटर्न में रॉक्स की आउटर लेयर जो है पील ऑफ होना शुरू हो जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सफोलिएशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सफोलिएशन और अनियन टाइप ऑफ वेदरिंग. ओके, ठीक है. नाउ, due to freezing of entrapped water within the rocks, there is expansion of 9% in volume, which exerts a pressure of 1465 tons per meter square or 145 to 150 kg per centimeter square. जब रॉक्स के अंदर जो वाटर होता है, जब उसकी फ्रीजिंग होगी ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट वाटर इनसाइड द रॉक्स विल फ्रीज. And when water freezes, then due to the hydrogen bonding, there is an expansion in the volume of water. Okay, when water freezes, there is an expansion of 9% in volume of water. Okay, and due to this expansion in volume, it will exert a pressure of 1465 tons per meter square or 145 to 150 kg per centimeter square on the rocks, due to which rocks will break down. Okay, you have to remember this pressure, 1465 tons per meter square or 145 to 150 kg per centimeter square, and this volume also, when water freezes,
then there is an expansion in volume of 9%. Okay. Then second one is water. Water is the most dominant and important physical factor responsible for physical weathering. ठीक है, जब रेनफॉल होती है, रेनफॉल होगी तो वाटर आएगा ऊपर से। रेनफॉल के कारण क्या होता है, बीटिंग एक्शन होता है। बीटिंग एक्शन ऑफ रेनफॉल के कारण क्या होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है। इसके सिवाय जब वाटर फ्लो करता है, ड्यू टू द फ्लोइंग वाटर देयर इज ए ट्रिमेंडियस कटिंग पावर ऑफ द वाटर that will cut out the rocks. Okay, that will also lead to the weathering process. And the transporting capacity or the carrying capacity of water varies with the velocity power 6. ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर वेरीज विद वेलोसिटी का पावर 6। ओके, देन आइस। Moving ice or glaciers leads to the cutting and crushing of bedrocks in a similar manner. Okay, then wind. The rounded rocks are formed by wind erosion. जो मशरूम रॉक्स हैं, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान में जो मिलती है मशरूम रॉक्स, दीज आर फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड्स। विंड का क्या होता है, एब्रेसिव एक्शन, मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, दैट लीड्स टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ओके, सेकेंड वन इज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी जिसके कारण ब्रेक डाउन होगा रॉक्स का। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, मतलब केमिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस एट द जंक्शन ऑफ लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज वेदरिंग फ्रंट। ठीक है, वेदरिंग फ्रंट किसे बोलते हैं, जंक्शन ऑफ लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर को। एंड वेदरिंग फ्रंट पर केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, the rate of chemical weathering increases with the amount of dissolved CO2, organic matter and organic acid and inorganic acid। जितने ज़्यादा सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड CO2 होगी, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक एसिड होगा, जितना ज़्यादा इनऑर्गेनिक एसिड होगा, उतनी ज़्यादा केमिकल वेदरिंग की रेट होगी, मतलब उतनी ज़्यादा फास्ट होगी रिएक्शन। केमिकल वेदरिंग की रिएक्शंस हैं, फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन। Solution is the decomposition of rocks depends on composition and solubility action of water। ठीक है, जितनी ज्यादा चीजें सॉल्युबल होंगी वाटर में उतनी ज्यादा उनकी अच्छे से केमिकल वेदरिंग हो पाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो हेलाइट होता है, हेलाइट बोले तो NaCl, वो इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि सिलिकेट जैसे कि क्वार्ट्ज जो होते हैं वो वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। NaCl जब पानी में घुलता है तो आराम से वो इजीली डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में, Na+ में एंड Cl- में। ठीक है, जितना ज्यादा ये डिसोसिएशन होगा, जितना ज्यादा वाटर में सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ज्यादा केमिकल वेदरिंग इजी होगी। ओके, सेकेंड रिएक्शन इज हाइड्रेशन। इट इज जस्ट केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद मिनरल्स टू फॉर्म न्यू मिनरल्स। अगर मिनरल्स में केमिकली जो है वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएं तो उसे बोलते हैं हाइड्रेशन। एंड दिस अकर्स प्राइमरली ऑन द सरफेस एंड एजेस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रेशन की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द मिनरल एंड द मिनरल बिकम सॉफ्ट। अगर मिनरल सॉफ्ट हो जाएगा तो दैट विल बी रेडिली वेदरेबल, मतलब वो आसानी से वेदर्ड हो जाएगा मिनरल। ठीक है, और जो एब्जॉर्ब वाटर होते हैं, एब्जॉर्ब वाटर बोला है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सरफेस पर होता है, हमने बोला ना सरफेस पर। ठीक है, जो एब्जॉर्ब वाटर होता है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है हाइड्रोनियम आयंस के लिए, जो कि जाके अंदर स्ट्रक्चर पर अटैक करने वाले हैं। ठीक है, जो कि वेदरिंग को आसान बनाने वाले हैं। एग्जाम्पल देखें, CaSO4 प्लस हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, बस प्लस की जगह यहाँ पर डॉट लगाना है। ठीक है, दिस इज एनहाइड्रेट एंड दिस इज हेमीहाइड्रेट। ओके, सिमिलरली CaSO4 plus 2H2O forms CaSO4 dot 2H2O, that is gypsum. Okay, 2Fe2O3
हेमेटाइट प्लस 3H2O gives 2Fe2O3 डॉट 3H2O। ठीक है, बस प्लस की जगह डॉट लगाना है। ठीक है, Fe2O3 क्या होता है आपका? हेमेटाइट। हेमेटाइट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का। तो इससे इजीली याद रख सकते हैं, हेमेटाइट विल बी रेड इन कलर। एंड दिस लिमोनाइट सॉरी, Fe2O3 डॉट 3H2O, लिमोनाइट, लेमन, नींबू येलो कलर का होता है। सो इससे हम याद रख सकते हैं लिमोनाइट का कलर क्या होगा? येलो। ऐसे सिमिलर रिएक्शन है CuSO4 प्लस 5H2O gives CuSO4 dot 5H2O. This is white in color and this is blue in color. Okay. Then third reaction is hydrolysis. It is the most important chemical weathering process among all. ठीक है, हाइड्रोलाइसिस सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है। इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है? CO2 मिनरल्स ऑर्गेनिक एसिड rich water get easily dissociated into hydronium ion and OH minus ion। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा हाइड्रोलाइसिस में? H2O जो है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? H प्लस एंड OH माइनस में। ठीक है, विच केमिकली कंबाइन विद अ मिनरल टू फॉर्म अ न्यू मिनरल। कैसे? ये देखो, H2O किस में ब्रेक डाउन हुआ? H प्लस में एंड OH माइनस में। देन दिस OH माइनस this H plus will replace this potassium। ठीक है, and the replaced potassium will react with OH minus। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम की जगह पे तो कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन, H। ठीक है, रिमेनिंग सेम। और पोटेशियम की जगह पे कौन आ गया? H। और जो पोटेशियम रिमूव हुआ है वो OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? KOH। ओके, देन दिस अगेन this product will again react with the H2O and finally Al2O3.3H2O plus H2SiO3, that is silicic acid will be formed। Okay, so this question is asked in exam like silicic acid is formed by which chemical reaction? तो hydrolysis, hydration, oxidation, reduction। So answer will be hydrolysis। ठीक है, and this hydrolysis is known as forerunner for clay formation। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइड्रोलाइसिस इज फोररनर फॉर क्ले फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब क्ले फॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है? हाइड्रोलाइसिस। ठीक, फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद एक्सपोज्ड रॉक्स और मिनरल्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मोस्टली ये रिएक्शन कब होती है? हाइड्रोलाइसिस होने के बाद होती है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। और कब होगी? जब ऑक्सीजन हाई होगा और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लो होगी। जब ऑक्सीजन ज्यादा हो, ऑक्सीजन ज्यादा हो और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो, तब क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल FeO है, FeO में आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में। ठीक है, और Fe2 में O3 में किस में है? +3 में। +2 से +3, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिमिलरली Fe3O4 में ऑक्सीजन जुड़ के क्या बने? Fe2O3, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। देन third one is reduction। Reduction is the just removal of oxygen or addition of electron। It occurs where oxygen is very low and biological oxygen demand is high। Here you can see iron is in
+3 oxidation state, and here iron is in +2 oxidation state, +3 to +2. This is reduction. Reduction is just opposite to ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिमिलरली Fe2O3 से क्या बन रहा है, Fe3O4, तो ये भी क्या है, एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में कुछ नहीं, CO2 जुड़ेगा, H2O में CO2 जुड़ेगा तो कार्बोनिक एसिड तैयार हो जाएगा। ये कार्बोनिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट था इनसॉल्युबल, लेकिन जब उसने कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन की तो क्या बना लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या हो गया, सॉल्युबल, ठीक है। दिस इज कार्बोनेशन। नाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आंसर है हाइड्रोलाइसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इन प्राइमरी मिनरल, तो प्राइमरी मिनरल में भी हाइड्रोलाइसिस। अगर पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इन सेकेंडरी मिनरल्स, तो आंसर जाएगा हाइड्रेशन, ठीक है। वेदर केमिकल वेदरिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइसिस, प्राइमरी मिनरल में केमिकल वेदरिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइसिस, लेकिन सेकेंडरी मिनरल्स में पूछे तो आंसर विल बी हाइड्रेशन, ओके। थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। when physical and chemical weathering is done by the biological agencies, means यहाँ पर living forms अगर involved हैं, कोई भी physical weathering को या फिर chemical weathering को aid कर रहा है यदि कोई भी living organism, तो उसे बोलेंगे हम biological weathering, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक सबसे पहले वेरन लैंड होती है, उस पे सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी आती है, पायोनियर कम्युनिटी आती है, उसके बाद उस पे इंटरमीडिएट कम्युनिटी आती है, देन उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है, ठीक है। तो जो पायोनियर कम्युनिटी होती है, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, मॉसेस एंड लाइकेंस, ठीक है। ये धीरे धीरे एसिड्स रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, एसिड रिलीज करने से जो है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है या केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से रॉक से सॉइल बनने लगती है, ठीक है। तो mosses and lichens appears first on the broken and physically weathered rock fragments, okay। एंड बायोलॉजिकल में और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रूट्स जो होती हैं वो जब पेनिट्रेट करेंगी सॉइल के अंदर तो क्या होगा, ये रॉक के अंदर कोई प्लांट उगा हुआ है छोटा भी, तो जब वो बड़ा होगा तो पेनिट्रेट करेगा अंदर रॉक के, जिससे क्रैक्स क्या हो जाएंगे, वाइड एंड चौड़े हो जाएंगे, ठीक है। और CO2 भी प्रोड्यूस करेगा, वो रेस्पिरेशन करेगा तब, ठीक है। दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल इन कार्बोनेशन प्रोसेस, दिस carbonation process, that CO2 will help in carbonation process, okay। एंड वॉर्म्स हैं जो अर्थ वॉर्म है, जैसे जो बरोइंग हैबिट उनकी होती है, वो क्या करते हैं, सॉइल को खाते हैं एंड देन सॉइल को एक्सक्रीट करते हैं हल्की डिकम्पोज्ड फॉर्म में, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ सॉइल होता है, ठीक है। दैट विल ऑल्सो हेल्प इन वेदरिंग प्रोसेस, ओके। Pedogenesis. In the last lecture, we see pedo means soil and genesis means formation. तो soil formation को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पेडोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है, यानी soil forming factors, and pedogenic process यानी soil forming processes. So first we see pedogenic या soil forming factors. According to Dokuchev, soil formation depends on parent material, climate and organisms, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू डॉकुचेव, बट देन जेनी added two more factors, that are relief and time, okay। relief means we can say topography यानी स्लोप और एलिवेशन एक्सेट्रा, ठीक है। एंड टाइम मतलब हाउ मच टाइम टेकन, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू डॉकुचेव, soil forming factors are soil formation depends on which factors,
parent material, climate, and organisms. But then Jani added two more factors, which are relief and time. Okay. Then Joffe divided these soil forming factors into two groups, active factors and passive factors. Active factors are climate, biosphere, and relief or topography. And passive factors are parent material and time. टाइम we can say age, मतलब कितना टाइम लगा सॉइल को फॉर्म होने में. ठीक है. फर्स्ट वन इज क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर पूछा जाए सॉइल फॉर्मेशन में तो क्या है? क्लाइमेट. क्लाइमेट में जैसे प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन सॉइल फॉर्मेशन. प्रेसिपिटेशन में अगर हम देखें तो रेनफॉल. ठीक है. इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन, रेनफॉल. Temperature is the second important climatic factor that influences the chemical reaction. ठीक है. टेम्परेचर से केमिकल रिएक्शन इफेक्ट होती है. वांट ऑफ के अकॉर्डिंग जब हम 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर में तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस और थ्राइस. अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ, with every 10 degree centigrade rise in temperature the chemical reaction becomes twice or thrice up to a certain limit. Okay. Then second factor is organism or biosphere. Like microorganisms हैं, rodents हैं, moles, snails, earthworm, termites, etc. इन सब की क्या होती है? बरोइंग हैबिट होती है. अब बरो बनाएंगे तो उससे क्या हेल्प मिलेगी? सॉइल की मिक्सिंग हो जाएगी. ठीक है. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज, नीमेटोड्स, प्रोटोजोआ, ये क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में. थर्ड वन इज रिलीफ या टॉपोग्राफी. इट डिनोट्स द कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड सरफेस इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन और स्लोप. ठीक है. आई ऑलरेडी सेड द रिलीफ इज रिलेटेड टू एलिवेशन और स्लोप. जो लोलैंड सॉइल होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं. मतलब जो नीचे की साइड जो लैंड होती है उस पर जो सॉइल होगी वो डार्कर कलर की होगी, उसका पीएचईसी हाई होगा और उसमें क्ले और ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होगा. इसका जस्ट अपोजिट होगा अपलैंड सॉइल में, वो लाइट कलर की होगी, पीएचईसी, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर उसमें कम होगा. ठीक है. अगर पेरेंट मटेरियल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जेनी it is the initial stage of soil system at the time of zero soil formation. जब सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो जिस चीज से जहां से सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है उस मटेरियल को क्या बोला है? पेरेंट मटेरियल बोला है. ठीक है. जो पेरेंट मटेरियल होता है वो हार्ड एंड लूज एंड अनकंसोलिडेटेड होता है. लूज एंड अनकंसोलिडेटेड मास होता है मिनरल मैटर का, which formed upon the weathering of rocks from which soil develops. ठीक है. जो रॉक्स होती हैं वो हार्ड अनकंसोलिडेटेड होती हैं, उनकी वेदरिंग से क्या बनता है? आपका पेरेंट मटेरियल बनता है जो कि लूज होता है, अनकंसोलिडेटेड होता है. ठीक है. ओके. देन पेरेंट मटेरियल एंड इट्स सोर्स. ठीक है. कॉलूबियम. यदि सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं या डिपॉजिट होते हैं बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी देन इट इज कॉलूबियम. यदि सेडिमेंट्स डिपॉजिट एंड ट्रांसपोर्ट होते हैं रिवर वाटर से देन इट इज एलुवियम. यदि होते हैं ये एयर से, कॉमनली विच इज कॉमन इन सैंड ड्यून्स. ठीक है. तो इसे बोलेंगे एओलियन. एयर एओलियन. ओके. यदि सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होते हैं लेक वाटर से तो उसे हम बोलेंगे लेकस्ट्राइन. ओके. सेडिमेंट्स यदि ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होते हैं सी और ओशियन से तो हम उसे बोलेंगे मैराइन. ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है. इनमें से कोई सी भी टर्म्स एग्जाम में पूछी जा सकती है. ओके. ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड इन द फॉरेस्ट इज ऑर्गेनिक. या सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर. अगर फ्लोइंग वाटर से डिपॉजिट और ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका सेडिमेंट देन इट इज आउटवॉश. मटेरियल डिपॉजिटेड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ हार्ड रॉक्स इन प्लेस. इन प्लेस मतलब जहां, इन प्लेस मतलब जहां का जहां. ठीक है. मतलब जहां पे ब्रेक डाउन हुआ वहीं पे प्रेजेंट है.
ठीक है, रेजिडुअल या रेजिटम बोलते हैं उसको। ठीक, सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्लेशियल टिल या आइस कॉल्ड टिल या मोरेन। ठीक है, विंड ब्लोन मटेरियल प्राइमरीली सिल्ट इज लॉस। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। देन फिफ्थ वन इज टाइम और एज। पेडोलॉजिक टाइम, द टाइम पीरियड फ्रॉम द स्टेज ऑफ पेरेंट मटेरियल टू द स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। पेरेंट मटेरियल से लेके जहां तक आपकी फाइनली सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, उस टाइम ड्यूरेशन को, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजिक टाइम। ठीक है, और सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फेवरेबल है? वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, फ्लैट टू जेंटली स्लोपिंग टोपोग्राफी होनी चाहिए। ठीक है, ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, सैंडी पेरेंट मटेरियल होना चाहिए। ये सारे क्या है? सॉइल फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। देन हम देखते हैं, हमने अभी देखे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, पैडोजेनिक फैक्टर्स। अब हम देखने वाले हैं पैडोजेनिक प्रोसेसेस या सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। सिमनसन के अकॉर्डिंग सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होती है? एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स, या फिर लॉस ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन मींस मूवमेंट इन सॉल्यूशन, दैट इज लीचिंग हो जाए या सस्पेंशन हो जाए क्ले मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का। तो सिमनसन के अकॉर्डिंग तो यही सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस थी। लेकिन बाद में क्या बोला है, बाद में क्या पता चला कि फंडामेंटल पैडोजेनिक प्रोसेस कौन कौन सी हैं? पहली है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर से जब ह्यूमस बनता है तो उसे बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। सबसे पहले रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में ऑर्गेनिक एसिड्स के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गया है? ह्यूमस में। ह्यूमस की डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है, ऐसा कॉलोइडल डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस दैट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक इज, इट इज ह्यूमस। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड इज इल्यूविएशन। इल्यूविएशन इज ई माइग्रेशन। ई फॉर इल्यूविएशन, ई फॉर एग्जिट। एग्जिट मीन्स रिमूवल, किसी चीज का यहाँ से रिमूवल, मतलब रिमूव हो रही है कोई चीज यहाँ से, रिमूव या वी कैन से वॉश आउट। वॉश आउट मतलब निकल रही है। सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स, रिमूवल ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन बाय द परकोलेटिंग वाटर फ्रॉम द अपर लेयर्स टू लोअर लेयर्स। अपर लेयर्स में से लोअर लेयर्स में कुछ कुछ मटेरियल जा रहा है सॉइल का, दैट इज नोन एज इल्यूविएशन और ई माइग्रेशन। You can remember with the help of this word exit, E for exit, E for illuviation. Okay. Then illuviation, illuviation और immigration. ठीक है, जैसे illuviation में exit हो रहा था, ऐसे illuviation में input, I for illuviation, I for in। ठीक है, इल्यूविएशन में से एग्जिट हो रहा था, आइल्यूविएशन में इनपुट होगा, यानी डिपोजिशन ऑफ सिंपलर सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स दैट आर रिमूव फ्रॉम इल्यूवियल जोन टू द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, इल्यूवियल जोन में से निकल के जो है सिंपलर सॉइल कंस्टिट्यूएंट किस में आके डिपॉजिट हो जाते हैं? जोन ऑफ एक्यूमुलेशन में, दैट इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ वॉश इन। ठीक है, या फिर वी हॉरिजॉन। ओके, तो जोन ऑफ इल्यूविएशन में से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और जोन ऑफ आइल्यूविएशन में आके डिपॉजिट हो जाते हैं। इस कुछ स्पेसिफिक पैडोजेनिक प्रोसेस भी हैं, जैसे फर्स्ट वन इज कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इट्स वेरी सिंपल। ओके, H2O प्लस CO2 होगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट से मिक्स होगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, CaCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है। और जब इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है, CO2 रिलीज होती है और H2O रिलीज होती है। ओके, second one is decalcification. It is just opposite to calcification, that is removal of calcium carbonate from soil by leaching. ठीक है, you can see the reaction.
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म। इसमें हीट करना था यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करना था, इसमें टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। दिस इज कैल्सिफिकेशन एंड डीकैल्सिफिकेशन। Podzolization. Podzolization is the accumulation of silica and removal of sesquic oxide. Sesquic oxide मतलब aluminum and iron oxides. ठीक है, podzolization is the process of accumulation of silica and removal of aluminum and iron oxides. This term podzolization is a Russian term. Pod means under and jola means ash like. Okay. Then laterization. Laterization is a Latin term. That comes from the word later. Later means brick. Later means brick या tile. Okay. And this laterization process is the removal of silica and accumulation of sesquic oxide. That is just opposite to the पॉडजोलाइजेशन, ठीक है। पॉडजोलाइजेशन में क्या हो रहा था, सिलिका का एक्यूमुलेशन हो रहा था और एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड्स रिमूव हो रहे थे, ठीक है। जबकि लेटराइजेशन में रिमूवल होगा सिलिका का और एक्यूमुलेशन होगा एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स का, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ग्लीजेशन। ग्लीजेशन इज अगेन अ रशियन टर्म, ठीक है, अगेन अ रशियन टर्म। ग्ली मीन्स ग्रे हॉरिजॉन, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ ग्ले हॉरिजॉन, ठीक है, ड्यू टू पुअर ड्रेनेज कंडीशन, इम्परवियस पेरेंट मटेरियल एंड लैक ऑफ एरेशन, ठीक है। ग्लीजेशन कब कब होता है, जब ड्रेनेज पुअर होता है यानी वाटर लॉगिंग कंडीशंस होती हैं, इम्परवियस हार्ड पेरेंट मटेरियल होता है और एरेशन की कमी होती है, तब क्या होता है, ग्लीजेशन, ठीक है। देन सैलिनाइजेशन, एल्केलाइजेशन एंड डीएल्केलाइजेशन, दीज आर द प्रोसेसेस that we will discuss in our next lecture in problematic soils. First, but we will just see the definitions here, then we will see details in detail in next video. Okay, that will be on problematic soils. ठीक है. Salinization is the accumulation of salts such as sulfates and chlorides of calcium and magnesium in soil that lead to the formation of saline soil. ठीक है. Salinization, saline soil form होने के लिए कौन सी प्रोसेस लगती है, सैलिनाइजेशन, ठीक है। सलाइन सॉइल को रिक्लेम किससे किया जाता है, गुड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर से, ठीक है। फ्लडिंग कर देंगे गुड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर से तो किसका रिक्लेमेशन हो जाएगा, सलाइन सॉइल का, ठीक है। एल्केलाइजेशन क्या होता है, एल्केलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस ऑन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ क्ले दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काली सॉइल, ठीक है। एल्काली सॉइल इज ऑल्सो नोन एज सोडिक सॉइल और सोलेंट्स, ठीक है। Likewise, this saline soil is also known as Solenchek, ठीक है। We will discuss about these processes and these soils in next video, problematic soils, okay. Alkali soil is ameliorated or reclaimed with the help of gypsum, okay. Dealkalization, it is the opposite to alkalization process, ठीक है। उसमें हो रहा था एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ सोडियम फ्रॉम एक्सचेंज साइट्स, ओके। देन पैडोटर्बेशन, पैडोटर्बेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल मटेरियल्स, जब सॉइल मटेरियल्स की मिक्सिंग होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पैडोटर्बेशन। इन द लास्ट लेक्चर वी आस्क्ड यू टू क्वेश्चंस, first one was why CO2 concentration is higher in soil as compared to the atmosphere. In atmosphere the concentration of CO2 was 0.03%, ठीक है, while in soil the concentration of CO2 was 0.3%, that is 10 times as compared to the atmosphere. The reason is in the soil microorganisms, sorry, in the soil
Microorganisms will be there, and due to the microbial activity they will release CO2. This is the first reason why CO2 is higher in soil as compared to atmosphere. And also the plants will be there. प्लांट्स होगा तो प्लांट्स की रूट्स भी होंगी। ठीक है, इन रूट्स का क्या होगा, रेस्पिरेशन भी तो करेंगी ये रूट्स, जिसमें क्या रिलीज होगी, CO2। दैट्स व्हाई CO2 concentration is high in soil as compared to the atmosphere. Okay. And the next question I asked was why tectosilicates are inert. ठीक है, most inert silicates are tectosilicate. Why? So in the last lecture we saw a line, all the oxygens are shared in tectosilicates. ठीक है, टेक्टोसिलिकेट्स में सारे ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई टेक्टोसिलिकेट्स आर मोस्ट इनर्ट सिलिकेट्स. ठीक है. देन वन डेफिनेशन इज देयर, लेसीवेज. Lessivage is the removal of clay in suspension from upper part of the soil profile and accumulation in lower part. ठीक है, क्ले मिनरल्स की लीचिंग जब होती है, ठीक है, अपर पार्ट से लोअर पार्ट में, तो उसे बोलते हैं हम लेसिवेज. देन दिस इज द वेदरिंग सीक्वेंस ऑफ मिनरल्स. वेदरिंग सीक्वेंस ऑफ मिनरल्स, जितनी ज्यादा मिनरल की स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा वो वेदरिंग के लिए रेजिस्टेंट होगा, उतनी कम उसकी वेदरिंग होगी. ठीक है. एक भाई साहब थे गोल्डिच, उन्होंने क्या दी थी, स्टेबिलिटी सीरीज दी थी, स्टेबिलिटी सीक्वेंस. ठीक है, जितना ज्यादा मिनरल स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो वेदरिंग के लिए रेजिस्टेंट होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंट होगा उतनी कम उसकी वेदरिंग होगी. ठीक है. मोर द स्टेबिलिटी ऑफ मिनरल, मोर इट विल बी द रेजिस्टेंट टू वेदरिंग. एंड ओके, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मिनरल की उतना ज्यादा वो वेदरिंग के लिए रेजिस्टेंट होगा. तो मोस्ट रेजिस्टेंट एंड स्टेबल मिनरल कौन सा है, क्वार्ट्ज. एंड लीस्ट स्टेबल मिनरल कौन सा है, ओलिवीन. ठीक है, एक स्टेबिलिटी सीरीज है, किसने दी है, गोल्डिच ने, ये रही. ठीक है, इसको हम सिंपली यहां से याद रख सकते हैं, क्वार्ट्ज देन मस्कोबाइट. This is the stability series. First, quartz is most stable. Most stable means most resistant to weathering. That is, it will be least weatherable. ठीक है. देन स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्वार्ट्ज की, देन उसके बाद मस्कोबाइट, देन पोटेशियम फेल्ड्सपर, देन सोडियम एंड कैल्शियम फेल्ड्सपर, दिस फेल्ड्सपर, then biotite, then hornblende, then augite, then olivine, then dolomite, then calcite, then gypsum. Okay, you have to remember this series. Okay, this sequence you have to remember. क्यों मुझे फेल्ड्सपर बताया. ठीक है, ऐसे कुछ आप इसकी ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं. Now we will come to our next topic, that is soil profile. Soil profile, it is the vertical section of the soil that show all its horizon. ठीक है. सॉइल प्रोफाइल एक 2D स्ट्रक्चर होती है, एक वर्टिकल सेक्शन होती है सॉइल का, जिसमें हम सॉइल के सारे हॉरिजॉन्स को देख सकते हैं. ठीक है. इट इज अ हिस्टोरिकल स्नैपशॉट. इट इज अ हिस्टोरिकल स्नैपशॉट ऑफ डिफरेंट पैडोजेनिक इवेंट्स. ठीक है. सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, एक हिस्टोरिकल स्नैपशॉट होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पैडोजेनिक इवेंट्स को शो करती है. इट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हॉरिजोनाइजेशन. हॉरिजोनाइजेशन प्रोसेस का रिजल्ट क्या है, सॉइल प्रोफाइल का बनना. ठीक है. इट इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल अप टू 1.5 टू 2 मीटर डेप्थ. ठीक है, सॉइल प्रोफाइल कहां तक होती है, 1.5 टू 2 मीटर डेप्थ तक होती है. मास्टर हॉरिजॉन्स, मास्टर हॉरिजॉन्स होते हैं आपके ओ हॉरिजॉन, ई, ए, ई, बी, सी एंड आर हॉरिजॉन. ठीक है, दीज आर द मास्टर हॉरिजॉन्स.
देन सोलम हम किसे बोलते हैं, ए हॉरिजॉन प्लस बी हॉरिजॉन, दो दो हॉरिजॉन ए और बी दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, सोलम। ये टर्मिनोलॉजी आपके एग्जामिनेशन में इजीली पूछी जा सकती है। सोलम रिप्रेजेंट विच हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, या फिर ए प्लस बी हॉरिजॉन, या फिर ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजॉन। तो ए प्लस बी हॉरिजॉन को हम बोलते हैं सोलम, एंड ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजॉन को हम बोलते हैं रेगोलिथ। ओके, now see, we will see the horizons and their characters. First one is O horizon, O for organic, ठीक है। This is dominated by organic material and it is present in forest land and absent in grassland or desert। जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन होगी, फॉरेस्ट लैंड जहाँ पे है जैसे, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, ओ ओरिजन प्रेजेंट होगा, और कहाँ पे एब्सेंट होगा, एरिड रीजन्स में, ग्रास लैंड में और डेजर्ट वगैरह में ओ ओरिजन एब्सेंट होता है। देन इज ए होरिजन, इट इज द अपर मोस्ट मिनरल होरिजन, डार्क इन कलर, ठीक है, क्योंकि इसमें मिनरल मैटर भी होगा और ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, ठीक है। देन ई होरिजन, ई होरिजन, it is a horizon of illuviation of clay, aluminium and iron। मैक्सिमम लीचिंग होती है इस हॉरिजॉन में, इल्यूविएशन जोन। इल्यूविएशन, ठीक है, हमने देखा था इल्यूविएशन और आइल्यूविएशन। इल्यूविएशन मतलब ई फॉर एग्जिट, ठीक है, एग्जिट होंगे न्यूट्रिएंट्स, क्ले, एल्युमिनियम एंड आयरन, मैक्सिमम लीचिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉश आउट जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉश आउट जोन क्योंकि यहाँ से वॉश आउट हो रहे हैं मिनरल्स। देन सेकेंड हॉरिजॉन इज बी हॉरिजॉन, सॉरी, नेक्स्ट हॉरिजॉन इज बी हॉरिजॉन, इट इज द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। आइल्यूविएशन, आइलू, ई आई फॉर इन, ठीक है, हमने पहले ही देख लिया है। वॉशिंग जोन, वॉशिंग जोन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आके न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसलिए वॉशिंग जोन। इट इज एब्सेंट इन ब्लैक सॉइल। वाई बी हॉरिजॉन, वाई बी हॉरिजॉन इज एब्सेंट इन black soil? If you know the answer, you can answer in the comment section. Okay. In the next slide, we will get the answer also of this question. Okay. C horizon. C horizon represent the parent material above which soil is formed. ठीक है. C horizon किसको represent करता है? Parent material. Then R. It is the hard and consolidated horizon. Strongly cemented bedrocks इसमें present होती है. ठीक है. Then this is the diagram. This uppermost, this horizon is the O horizon, that is having organic matter layer, ठीक है, ह्यूमस इसमें प्रेजेंट होगा। देन दिस इज ए हॉरिजॉन, टॉप मोस्ट मिनरल वाला अगर आपसे हॉरिजॉन पूछा जाए तो ए हॉरिजॉन होता है, ठीक है। ए के बाद आता है इल्यूविएशन वाला, ई हॉरिजॉन, ठीक है, इल्यूविएशन लेयर, इसमें क्या होगी, मैक्सिमम लीचिंग होगी मिनरल्स की, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका बी हॉरिजॉन, ये था आपका वॉश आउट वाला, और ये है आपका वॉश इन वाला, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट होंगे मिनरल्स, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे आके डिपॉजिट होंगे, ठीक है। देन सी हॉरिजॉन, इट इज द पेरेंट रॉक, पार्शली वेदर्ड रॉक, पेरेंट मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है सी हॉरिजॉन। देन आर हॉरिजॉन, दिस इज द वेदर्ड रॉक, बेड रॉक, अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल, हार्ड एंड consolidated, hard and consolidated. Okay, so this is the soil horizon. Then we will see the soil taxonomic categories, that is soil का classification। soil को सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 categories में divide करते हैं, that is order, suborder, grade group, subgroup, family and series। These are the 6 categories in which we divide the soil।
ठीक है। इनमें से सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो होती है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी कैटेगरी, सबसे ऊंची कैटेगरी कौन है? ऑर्डर। एंड सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन है? सीरीज। ठीक है। देर आर 12 ऑर्डर्स for soil. These 12 orders are antisol, saptisol, vertisol, molisol, aridosol, alphisol, spodosol, ultisol, oxysol, stosol, andisol and gelisol. ठीक है, these are the 12 orders of soil. Then we will see the soils of India. You have to remember the geographical area of India. The geographical area of India is 3 to 9 million hectare. ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? 3 to 9 million हेक्टेयर। एंड द फर्स्ट सॉइल मैप ऑफ इंडिया वाज डेवलप्ड बाय मैडम स्लॉस्किया स्लॉस्किया इन 1932। फर्स्ट सॉइल ऑफ इंडिया, फर्स्ट सॉइल मैप ऑफ इंडिया वाज डेवलप्ड बाय मैडम स्लॉस्किया इन 1932। ठीक है। नाउ वी विल लुक एट द soils of India. First one is alluvial soil. Alluvial soil covers the largest area of India and it is a highly fertile soil. You have to just remember some properties of the soil. Okay, these can be directly asked in your examination. Okay, so it is the most important type of soil found in India, and there are two types of alluvial soil: younger alluvial and older alluvial. Younger alluvial is known as khadar and the older alluvial is known as pangar soil. ठीक है। जो पुराना हमारा सामान हो जाता है उसे हम क्या करते हैं? भंगार में बेच देते हैं ना। ठीक है, तो ये वही है भंगार सॉइल। ठीक है। ओल्डर एलुवियल सॉइल इज भंगर एंड यंगर एलुवियल सॉइल इज खादर। ठीक है। इसमें डोमिनेंट क्ले मिनरल क्या कौन सा होता है एलुवियल सॉइल में? इलाइट। ये आपको याद रखना है। डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है और सॉइल ऑर्डर कौन सा है, ये हम सारी सॉइल्स के बारे में देखने वाले हैं। आपको याद रखना है किस सॉइल में कौन सा डोमिनेंट क्ले मिनरल प्रेजेंट है और उस वो सॉइल कौन से सॉइल ऑर्डर के अंदर आती है। लाइक एलुवियल सॉइल में डोमिनेंट क्ले मिनरल है इलाइट, एंड इसमें ये कौन कौन से सॉइल ऑर्डर्स में को कवर करती है? एंटीसोल्स, सेप्टिसोल्स, एल्फिसोल्स एंड एरिडोसोल्स। ठीक है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें एलुवियल सॉइल का, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में प्रेजेंट है, ब्रह्मपुत्र वैली में प्रेजेंट है और कोस्टल एरियाज में प्रेजेंट है। ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। ओके। सेकंड वन इज ब्लैक सॉइल. Black soil is also known as black cotton soil and self-mulching soil. Why it is known as self-mulching soil? सेल्फ मल्चिंग सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सॉइल्स में क्या होता है? पेडोटर्वेशन, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट पेडोटर्वेशन इज द मिक्सिंग ऑफ द सॉइल। ठीक है। ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ द सॉइल देयर इज सेल्फ मल्चिंग। ठीक है। एंड द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड अर्लियर, why B horizon is absent in black soil? The answer is pedoturvation. Due to the pedoturvation, that is the mixing of the soil, B horizon is absent in black soils. Okay. And these black soils are very dark in color, cracking in nature and clay dominated. ठीक है। आपने ब्लैक सॉइल्स के इमेजेस देखे होंगे, उनमें बीच बीच में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये है क्ले डोमिनेटेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है। ब्लैक कलर क्यों होता है ब्लैक सॉइल का? ड्यू टू द टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट मिनरल। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट मिनरल के कारण ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी इल्यूविएशन एंड आइल्यूविएशन। ठीक है। इनमें इल्यूविएशन आइल्यूविएशन जैसी प्रोसेस होती ही नहीं है क्योंकि इसमें तो बी हॉरिजॉन ही एब्सेंट होता है। वाई? बिकॉज ऑफ पेडोटर्वेशन, दैट इज मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स। ठीक है। डोमिनेंट क्ले मिनरल देखा जाए ब्लैक सॉइल में तो वो है मोंटमोरिलोनाइट। ओके। सॉइल ऑर्डर कौन सा होता है ब्लैक सॉइल का? वर्टिसोल्स, एंड दीज आर डोमिनेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलती है। देन एमपी में कुछ कुछ पार्ट्स में एंड कुछ कुछ पार्ट में गुजरात में देखने मिलती है ब्लैक सॉइल्स। थर्ड वन इज रेड सॉइल. These are well drained soils and red in color due to the ferric oxides. Okay, why red soils are red in color? Due to the ferric oxides. Dominant clay mineral present in the red soils? Kaolinite. ठीक है। The soil order
of red soils is alpine soils, and it is distributed in Tamil Nadu and Karnataka. Simply you have to remember these 2 to 3 properties of each soil. Okay. लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल जो इस सबसे पहले ये जो टर्म दिया था लेटराइट, ये किसने दिया था? बुचनन ने दिया था। किसके लिए दिया था? कुछ रॉक्स मिली थी उसको या कुछ मटेरियल मिला था उसको, कहाँ पे? मालाबार हिल्स ऑफ केरला में। ठीक है, उसको उसने सबसे पहले क्या नाम दिया भूषणन ने? लेटराइट। ठीक है, these laterite soil are formed by the process of laterization. ठीक है, these laterite soil are also red in color and high clay content. ठीक है, these these two points are very important, very important. ठीक है, laterite soil are deficient in almost all nutrients. These are मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल्स। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है लेटराइट सॉइल में, इन्हें बोला जाता है मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल्स। किस सॉइल को? लेटराइट सॉइल को। ओके, डोमिनेंट क्ले मिनरल प्रेजेंट इन लेटराइट सॉइल इज काओलिनाइट। सॉइल ऑर्डर इज ऑक्सीसोल एंड अल्टीसोल। ठीक है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिल्स और फुटहिल्स एरिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, एमपी एंड हिली रीजन्स ऑफ असम एंड उड़ीसा। ठीक है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देन सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में आते हैं आपके सलाइन सॉइल, अल्कली सॉइल और सलाइन अल्कली सॉइल्स। वी विल सी अबाउट दीज सॉइल्स इन डिटेल in next video, which is on problematic soils. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल सॉइल्स ऑफ एरिड क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट में डेजर्ट सॉइल मिलती है। लो न्यूट्रिएंट होता है इनमें, वेरी लेस प्रोफाइल डेवलपमेंट होता है, यानी प्रोफाइल सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट इनमें क्लियर कट नहीं होता है। ठीक है, लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। सॉइल ऑर्डर कौन सा होता है इनका डेजर्ट सॉइल का? एरिडोसॉल, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में आपको देखने मिलेगी डेजर्ट सॉइल्स। Then forest and hill soils, these are developed under forest canopy. ठीक है, कैनोपी क्या होती है? वो जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनमें जो कवरिंग दिखाई देती है। ठीक है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज की जो कवरिंग दिखाई देती है उसे बोलते हैं फॉरेस्ट कैनोपी। ठीक है, वहां पर आपको दिखाई देगी फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल्स। सॉइल ऑर्डर कौन सा होता है फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल का? मॉलीसोल, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल। ठीक है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पीट एंड मार्श सॉइल्स। पीट सॉइल्स अकर इन humid regions and having sufficient amount of soluble salts and organic matter. ठीक है, और saline peat soils of Kerala are known as Kari soils. It is important, can be asked in your examination. Saline peat soils of Kerala are known as Kari soils. ठीक है, these soils are black in color, fine in texture and accumulation of ferrous and aluminum sulfates and iron pyrites in tidal swamps. ठीक है, ये सारी चीजें इनमें एक्यूमुलेट होती हैं, और जब ये ड्रेन होगी, ड्रेन मतलब इनमें से जब वाटर निकलेगा तो ये जो पायराइट है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड में, एंड ड्यू टू दिस सल्फ्यूरिक एसिड द पीएच विल बी डिक्रीज्ड एंड in such conditions the pH can reach less than 4. Okay, these soils are also known as acid sulfate soils or cat clay soils. ठीक है, marshy soils of this type occur in coastal areas of Odisha, Sundarban areas of West Bengal and southeast coast of Tamil Nadu. ठीक है, इन सब सॉइल्स के बारे में आपको दो दो तीन तीन पॉइंट सबके बारे में याद रखने हैं। सॉइल ऑर्डर के बारे में आपको याद रखना है, और उनमें डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है वो आपको याद रखना है, और थोड़ा थोड़ा इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको याद रखना है कि कौन से रीजन में ये सॉइल मिल रही है। ठीक है, नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट वन इज पैडॉन,
पैडोन इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट कैन बी कॉल्ड सॉइल। ठीक है, वो सबसे छोटा पार्ट जिसको सॉइल बोला जा सकता है वो होता है आपका पैडोन। पैडोन एक 2D स्ट्रक्चर होता है जो कैसा शेप में होता है, हेक्सागोनल शेप का होता है। ठीक है, सोलम क्या होता है, ए प्लस बी हॉरिजोन को मिला के हम बोलते हैं सोलम, एंड ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजोन को मिला के हम बोलते हैं रेगोलिथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, देन फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी, हु इज द फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी, जीडी स्मिथ। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस, डॉकुचेव, वीवी डॉकुचेव, वेस्ले वेस्लेविच डॉकुचेव। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस इन फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस अगर पूछा जाए तो जे डब्ल्यू लेदर। फादर ऑफ सॉइल साइंस वीवी डॉकुचेव, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस जे डब्ल्यू लेदर। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इज ऑल्सो जे डब्ल्यू लेदर। ओके, एंड आयरन पायराइट जो होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, और इसको क्या बोला जाता है, फूल्स गोल्ड, यानी मूर्खों का सोना। ठीक है, सो टुडे we covered weathering of rocks and minerals, then soil profile, then this last part, soils of India. ठीक है, in the next video we will discuss about the problematic soils. Okay, if you have any doubt regarding this video, you can simply comment your doubt in the comment section. I will look into it and will try to solve each and every doubt. So thank you very much for watching the video. Okay, you can also join our test series bundle, which is having 50 plus full length mock tests, which is according to the topic wise. ठीक है, and these mock tests are prepared by our top rankers of ICRPC examination, and with that course you will also be able to see these PPTs also. Okay, so thank you very much for watching the video. See you in the next video. Thank you.